Hello and welcome. I am Alvia Rizvi from PropTech Buzz. Today's episode is about a visionary entrepreneur and the founder and CEO of Micromitty, a PropTech startup transforming wealth creation in India through innovative real estate and fractional investment concepts. He's empowering individuals to grow their wealth regardless of their financial background. He's also the founder and former CEO of AI Trillion, a SaaS platform that's helping over 1,000 e commerce clients worldwide with sales and marketing automation. With 15 plus years in tech and management, he's worked with top brands like Harley Davidson, Telebrands, and 1800 law firm and has successfully launched numerous large scale projects. Mr. Manoj Dhanotia. Hello, Mr. Manoj. How are you? Yeah, hello. Yeah, very fine. Thank you for having me on the podcast. Manoj, why don't you tell us a little bit about yourself? Okay, so see, me being me, I'm the first generation entrepreneur, and I hail from here, Indore, tier two city, but one of the fastest growing city across India, known for the one of the cleanest city in India. Or I was born in Mysore, a tier 3 city. Went to US for 5 years to study. Then came back and I started my own IT business. So last 15 years I have been into IT. I own two Okay. different firms. One is Go Web Baby, one AI Trillion, which works in SaaS product, e-commerce marketing, automation, and AI. And now we are working with Micromitty. We founded this company like 1 year back, and last 7 months I've been working here as a full-time CEO and founder. Okay. And so this is really interesting because there is a lot about to happen in tier two cities in India because when you go to see the tier one cities have already developed a lot and there is very little land availability here. Whatever growth has happened, now the growth is slowing down and all the opportunities are moving towards tier 2 and tier 3 cities because there is so much untapped potential over there. And so even y'all are based out of Indore, which as you said is the cleanest city of India, and there is so much to be done over there. So then why don't you explain to us a little bit about how you started Micromitty and what are you all looking to do with it? Right. So see, Micromitty ka idea was not born in day one, but it came from the basic idea. So I belong from that category जो जो बिलीव करते हैं कि इंडिया विल बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना। और ये ग्रोथ आएगा कैसे? ये आएगा टीयर टू टीयर थ्री सिटी में, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, अगर हम चाइना 1+ पॉलिसी की बात करेंगे, इंडिया विल गेट लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दैट। तो बहुत कुछ इंडिया में अगले 5 से 10 साल में होने वाला है। और व्हेन आई थिंक अबाउट एनी वन सेक्टर विच विल ग्रो लाइक एनीथिंग, तो दैट इंडिया में पहले ऐसा आईटी हुआ है ना, लास्ट 10 years 15 years 20 years यू सीन आईटी हैज ब्रॉट दैट चेंज, बट नाउ आई थिंक इट विल बी द रियल एस्टेट। और मेरे लिए रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होम और कमर्शियल ऑफिस और एग्रीकल्चर। फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट इज ह्यूज, राइट फ्रॉम एनीथिंग विच इज गोना हैपन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिफेंस में ग्रोथ आने वाला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, या हम वेयर हाउसिंग की बात करें, हम लॉजिस्टिक की बात करें, ये सब चीजें जमीन पर होंगी। हम आज ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सब कुछ जमीन पे होगा। तो जमीन सिर्फ खरीदना बेचना नहीं होगा, जमीन के ऊपर बिजनेसेस रन होने वाले हैं, और बिजनेसेस के साथ में काफी कुछ एंसिलरी इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है। तो मैं नेक्स्ट जनरेशन जॉब डेवलपमेंट भी रियल एस्टेट में देखता हूँ। तो रियल एस्टेट में सिर्फ बायर सेलर ब्रोकर नहीं होने वाला है, एआई का इसमें रोल होने वाला है। व्हेन वी से प्रॉपटेक, तो टेक्नोलॉजीज में आने वाला है। यू विल नीड डिजिटल मार्केटर्स, यू विल नीड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, आपको लीगल एक्सपर्ट्स लगेंगे इसके अंदर। और जिस तरह से हमारा इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है, तो एक पूरा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में ग्रो हो रहा है। एक अभी रिपोर्ट आया था रिसेंटली जहां पे बोला था कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं दे वर अंडर 30 years। तो Wow. यंगस्टर्स का जो पूरा पैसा मूव ऑन हो रहा है, जिससे इकोनॉमी हमारा मूव हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट गिर नहीं रहा है, एफआईआई तो बेच रहा है, लेकिन डीआई खरीदते जा रहा है। तो डीआई में हम ही लोग हैं। तो ये जो डेवलपमेंट आएगा, ग्रोथ आएगा इंडिया के अंदर, ये जमीन पर आएगा। और एक ही पूरा सेक्टर जो यंगस्टर वाला मैं बोल रहा हूँ, ये भी इससे एक्सक्लूडेड है। तो हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, या पुराने लोगों ने, एचएनआई या अल्टर एचएनआई पैसा रियल एस्टेट में बहुत बनाया है, बट बिकॉज ऑफ इट्स अनऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हमारे यहाँ वो नेगेटिव फीलिंग भी आता है। रियल एस्टेट बोलते हैं तो कह रहे यार
फ्रॉड या बड़ा मुश्किल है, तो आप कहीं Hmm. फिनटेक गुरु को या स्टॉक मार्केट गुरु को बोलता हुआ सुनेंगे कि यार रियल एस्टेट में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि लैंड पे कब्जा हो जाता है या पता नहीं क्या है। बट दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वेयर द माइक्रोमिटी वाज बोर्न, है ना। तो आई सीन दिस इन लास्ट 10 इयर्स व्हाइल वर्किंग इन आईटी की देश तेजी से बढ़ रहा है, टियर 1 सिटी में ग्रोथ हो रहा है, टियर 2 में भी ग्रो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे ऑफिस में काम करता है ना बंदा, वो अपना घर के लिए प्लॉट भी नहीं खरीद पा रहा है। सिंपल बाय सेल का डिस्कशन अगर मैं करूं, क्योंकि उसके पास एक तो बी कैश कंपोनेंट नहीं है, या फिर जितना वो पैसा इकट्ठा करता है उससे ज्यादा जमीन का भाव बढ़ जाता है। तो एक तो वो बेसिक इन्वेस्टमेंट घर के लिए भी नहीं कर पा रहा है, प्लस अगर वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात करेंगे, माइक्रोमिटिसिंग बिल्डिंग वेल्थ ऑन लैंड, तो वेल्थ Hmm. क्रिएशन पुराने लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया ही जमीन के अंदर है, अपार्ट फ्रॉम 100%. स्टॉक्स, है ना। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स, तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं 30 ईयर प्लस या 20 ईयर प्लस या 25 ईयर प्लस भी, जिनके पास में एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा है, वो क्योंकि टिकट साइज रियल एस्टेट में बड़ा है, वो आ नहीं पाते, है ना। तो दैट्स वेयर माइक्रोमिटी वाज बोर्न कि विल डू माइक्रो इन्वेस्टमेंट, विल क्रिएट दिस न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, लाइक अब एसएम रीट से भी ले आया, या हम पहले प्राइवेट इक्विटी की बात करते थे या एनसीडी की बात करते थे। इन इन तरीके से हम बड़े टिकट साइज जहाँ पे 100 200 500 करोड़ के प्रोजेक्ट है, वहां पे 5 लाख 10 लाख 50 1 करोड़ वाले लोग भी डे वन पर एज ए पार्टनर बनकर आ पाए, ताकि जब देश ग्रो हो, सिटी ग्रो हो, तो जो लैंड का वैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है या हम लैंड पे कुछ वैल्यू एड ऑन करें बिजनेसेस से भी, उसमें आम आदमी की भी एंट्री डे वन पर हो पाए, जैसा कि स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। That's where the whole idea was कि why we have to create micromedia and how it will help people invest, build wealth in a legal and transparent way. I really like the concept actually. So initially when we were even speaking to Gitanjali, और वो हमें बता रही थी कि we work in this particular way and we are looking for the opportunities to tier two cities में. Okay, because land तो सबसे ज्यादा वही है, and you're 100% right when you're saying that. I think there was a huge boom 2022 में when COVID hit, and that is when the younger generation went into the stock market, right? Because we were all sitting at home, कुछ करने के लिए था नहीं, and we have that liquidity, so let's start building in the market, and the entire stock market had gone to half price. So it was a lovely time to be in the market, and as Indians discount तो हमें पसंद है, तो हर चीज discount पे थी, तो we were at it. So yes, I definitely love this idea, and I definitely think that it's going to go far. But you have transitioned from AI Trillion, which was like an e-commerce thing, and now you've gone into Micromitty, which is a real estate company. And so how did you transition to that, and how is your experience in SaaS going to help you leverage this? राइट, तो सी ट्रांजिशन फ्रॉम एआई ट्रिलियन टू माइक्रोमिटी, ऐसा लगता है कि आईटी से कोई बंदा उठ के सीधा रियल एस्टेट में आ गया, बट लाइक आई सेड मेरा रियल एस्टेट का डेफिनेशन बड़ा है, देयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई टेल यू हाउ दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प माइक्रोमिटी। नंबर वन, एआई ट्रिलियन वी हैड क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, 70% आर इन यूएस, देन यूके, यूरोप, तो वी न्यू लॉट ऑफ पीपल एंड देयर ऑल बिजनेसमैन, ठीक है। तो वी न्यू कि कैसे रियल एस्टेट में दिस लॉट ऑफ, आपको ये पीछे बैकग्राउंड कुछ आ रहा है वॉइस, नहीं. इधर से, ठीक है, ऑलराइट। सो आई स्टार्ट अगेन दिस आंसर, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। No So problem. see, when I switched from AI 10 to Micrometry, there are a lot of real time life experiences which we believe कि वो इधर काम आने वाले। Number one, we had a global exposure, and I have talked to so many US clients. I understand the investment banking in US, कैसा FDI का पैसा इंडिया में आता है। तो there are companies like BlackRock, Blackstone जो रियल एस्टेट के अंदर, but how they are bringing funds from US market to India, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है, that money is coming to India as a FDI. सो वी न्यू कि ये पैसा इंडिया में वी कैन यूज इन रियल एस्टेट, अगर इंडिया ग्रो रहा है तो आप लगाओगे कहाँ पे। सेकंड, ई कॉमर्स इटसेल्फ हैपेंस ऑन लैंड, तो जैसे ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एयरटेल भी बढ़ा काफी तेजी से, वी हैड दिस होल ई कॉमर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, बट ई कॉमर्स के साथ में वी न्यू वेयर हाउसिंग इज रिक्वायर्ड, वी न्यू लॉजिस्टिक इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इंदौर बीइंग द सेंटर ऑफ इंडिया, वी न्यू लॉट ऑफ कंपनीज जिनको अलग अलग जगह से इंडिया में से उठ के इंदौर में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन इज इवनली पॉसिबल, है ना। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो ई कॉमर्स होगा कहाँ, जमीन पे। तो लाइक आई एम सेइंग रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट
buying selling the whole business attached to it, that one experience is going to help us कि कितनी जल्दी कैसे कैसे अभी ई कॉमर्स, अभी क्विक कॉमर्स आ गया, तो आपको पता है कि वो डार्क स्टोर्स बनाने होगा कहाँ, जमीन पे ही होगा. तो यू विल नीड दैट काइंड ऑफ लोकेशन, एंड दिस कंपनीज आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर लैंड और ट्रेडिशनल ब्रोकर कौन से कि मुझे जमीन दिखा दो. दे नीड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस बिंग डन कि मेरा स्टोर होने कहाँ वाला है, कितना दूर है, क्या लोग हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है वहां पे, बायसल डेटा है क्या. तो हम ई कॉमर्स में यही सब एनालिसिस करते थे टेक्नोलॉजी यूज करके. सो दैट टेक, दैट एआई, दैट मशीन लर्निंग, दैट डेटा experience will be required in this kind of decision making here in real estate, or that's where the whole proptech comes into picture. तो ये तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया. ग्लोबल एक्सपोजर से वी आर एबल टू ब्रिंग मनी आल्सो. अभी हम माइक्रोमिटी में भी यही कर रहे हैं. माइक्रोमिटी यूएस से हमने बनाया है, जहां पे हम यूएस का पैसा हम एफडीआई के थ्रू गुजरात में गिफ्ट सिटी में लेकर आ रहे हैं. दैट मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन रियल एस्टेट, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ता होने वाला है कंपेयर टू Mhm. अदर डेवलपर्स. क्योंकि आज आप बैंक से लेने जाओगे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो 12-15% लगता है, और मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूएस से 5% 6% पे आ रहा है. तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बेनिफिट? द यूजर, क्योंकि Yes, मेरा कॉस्ट ऑफ absolutely. कंस्ट्रक्शन सस्ता है. तो ये सारे चीजें हम वहां से सीख के आए. आई हैव रेज फंड्स इन एआईटी टू सम ऑफ द फ्रॉम सम ऑफ द टॉप फैमिली हाउसेस. एक्सपीरियंस हमको माइक्रोमिट्टी में काम आ रहा है कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट फंडिंग इन रियल एस्टेट, या ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आना. अदरवाइज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर वेरी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कि यार ये बड़ा 100%. कैश है एवरीथिंग. तो लेकिन बट हाउ टू स्ट्रक्चर अ कंपनी इन अ लीगल वे, इक्विटी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो दैट एक्सपीरियंस वी आर ब्रिंगिंग नाउ टू माइक्रोमिट्टी. दैट विल हेल्प लॉट ऑफ younger people and new generation investors to invest easily into micromitty. Third, micromitty में see, when I was sitting in an IT office in AITL, like I said, I knew कि there are so many people जिनका salary 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख भी है. They are not able to afford the land. They are not Hmm. able to buy. एक प्लॉट लेने के लिए होता क्या है ना, फिर उनको जाना पड़ता है शहर से थोड़ा दूर, जहाँ पे कोई नया कॉलोनी कट रहा है छोटा सा. वहां पे वो अपना एक प्लॉट तो ले लेता है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर लेके बैठ जाते हैं जिनका विजन है लॉन्ग टर्म. तो वो कॉलोनी में घर ही नहीं बनाने वाले. तो वो बेचारा अपना घर बनाने के लिए एक प्लॉट ले लिया, और बाजू में 50 कोई प्लॉट ऐसा इन्वेस्टर लेके बैठ गया जो बनाएगा नहीं. तो कम्युनिटी Hmm. क्रिएट नहीं होने वाला है. सिटी के अंदर लैंड इज वेरी कॉस्टली, तो वो फ्रैक्शनल में Yes. इन्वेस्टमेंट करेगा कैसे, है ना. तो फ्रैक्शनल वर्ड जो आया है ना, फ्रैक्शनल का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा लो. फ्रैक्शनल का मतलब ये भी कि आपकी आप जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है लैंड की, उसको आप हैच कर पा रहे हो विद इन्फ्लेशन, विद ओवर द पीरियड टाइम, विद योर सेविंग. तो ऐसा नहीं होगा कि आप 90 लाख रुपए इकट्ठे आपने जब तक करे, पता चला वो प्लॉट 1.5 करोड़ का हो गया. तो यू कैन हैज योर कॉन्सेप्ट. तो यही सारे नए जनरेशन, दिस आर नॉट न्यू जनरेशन वर्ड्स, बट आई कीप यूजिंग द वर्ड क्योंकि आम आदमी को एक्चुअली वो सब नहीं पता. हम एचएनआई, अटर एचएनआई में तो ये सारे डिस्कशन हो जाते हैं कि कैसे हैच करना है, इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, पर वो सारी चीजें अभी भी मिसिंग है. तो मुझे लगता है कि माय एक्सपीरियंस इनटू दैट e-commerce, AI-driven sector, raising the fund, talking with people, the problems of not able to afford things, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे करना है. बिल्डर्स को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एक नंबर का पैसा उनको बड़ा इशू होता है. तो दोस प्रॉब्लम्स वी आर एबल टू सॉल्व बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस. I बहुत ही बढ़िया आइडिया है. आई एक्चुअली रियली लाइक दिस बिकॉज मैं कहीं पढ़ रही थी, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड नाउ एज एन इन्वेस्टर माई सेल्फ. रिसेंटली my brother, वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, so as soon as he got an opportunity to park his money somewhere, he decided कि बॉम्बे के around there is one area called Neral, I'm going to buy land over there. The beauty of रियल एस्टेट इज कि वो कभी डेप्रिसिएट नहीं होता, वो हमेशा अप्रिशिएट ही होता है. एंड कंसिडरिंग बॉम्बे के हाईवेज एंड कनेक्टिविटीज इतनी ग्रो हो रही है, अब हमारा अटल सेतु आ गया, सो डेफिनेटली यू नो पीपल वांट टू गो एंड स्पेंड टाइम मोर यू नो इन अदर होम्स अराउंड टाउन के. यू नो टाउन बहुत हमारा फास्ट हो गया, सिटी हमारी बहुत तेज हो गई है, तो थोड़ा वी नीड दैट स्पेस. And I really enjoy that concept. But then when I think about it, हमारे parents they used to buy homes at 32 33. उनका खुद का घर होता था. They could इतना you know affordable होता था हाउसिंग के, उन लोग खुद अपना घर खरीद लेते थे, and then they used अपना you know घर बसा लेते थे. But today when I am looking, now that we have reached our parents age, we cannot afford those houses. So when you look at it, जब इन्फ्लेशन बढ़ा है 10 times, but the rise in salaries as opposed to that inflation is only 3 times. So today that new entire conversation चालू हुआ है कि रेंट करते हैं घर, because it makes more sense to rent a house than it makes to buy a house. But because I am Indian by mentality,
मेरी वही आइडिया है कि नहीं, जमीन होनी चाहिए तो अपनी होनी चाहिए, वी शुड बाय आवर ओन लैंड. तो आई रियली अग्री विथ योर कॉन्सेप्ट एंड आई लव दैट. एंड ऑल्सो दूसरी बात ये है कि यू आर डेफिनेटली करेक्ट व्हेन यू से कि यू नो दिस मनी बाइंग बिजनेस, सॉरी लैंड बाइंग बिजनेस इज वेरी डिफरेंट इन इंडिया, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत होता है. फिर एक वो इश्तेहार निकलता है न्यूज़पेपर में 15 दिन 1 महीने का कि भाई ये किसी की प्रॉपर्टी है तो आके पहले क्लेम कर लो बिकॉज दिस इज गोइंग फॉर सेल और वट एवर. So I completely agree with that, and this is amazing. This is actually very nice to add tech to that part where that trust concept is missing. You're adding that element to it. So I really enjoy that. But just explain to us the process a little bit. Okay, how do we go about doing this? If we come to micro today, if I come to Micromitty and I say, okay, I am interested in buying something, which I probably will be. How will I go through with it? Right. So see, two parts to it. One, I want to be very clear, माइक्रोमिट्टी कुछ नया नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल. माइक्रोमिट्टी से पहले आप अपने फादर से पूछेंगे या एनीबडी हु इज इनटू बिजनेस ऑफ दिस रियल एस्टेट ऑन अ लार्जर स्केल, 4 5 10 लोग मिलकर ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना पाते थे, है ना. कभी भी रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता था कि एक बंदे ने सब कुछ कर लिया. एक्सेप्शंस आर देयर, बट इट इज यूजुअली एन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बाय 4 5 लोगों ने मिलके. अब आज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड when we are saying कि it is very costly, land is not like easy to buy and it is going to be costly, तो ये जो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया है कि काफी लोग मिलकर छोटे छोटे टिकट साइज में एक बड़ा लैंड पार्सल खरीद लें, है ना. दैट इज ऑल फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट, जो पहले भी था. हमने ये करा है नया माइक्रोमिट्टी के अंदर कि पहले ये अनऑर्गेनाइज वे में होता था. 4 लोग मिलकर कंपनी में खरीद लेते थे या वो शेयर आपस में बांट लेते थे, एक एग्रीमेंट कर लेते थे. बट इन दिस न्यू एरा जहां पे इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, फंडिंग, सेबी, एवरीथिंग इज देयर, न्यू जनरेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल जब हम बोलते हैं तो एक तरीका एसएम रेट, जो आप टियर 1 सिटी में काफी सुनेंगे, जहां पे कंपनीज लाइक स्टाटा, प्रॉपशेयर कैपिटल, अल्डीआरएक्स इज वर्किंग. दे आर सेलिंग इन अ वे कि आप एक बड़ी बिल्डिंग, क्योंकि मुंबई में बिल्डिंग्स बनी बनी है ना, वहां पे लैंड तो है नहीं ज्यादा, तो उन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट रेंटिंग का कॉन्सेप्ट चालू कर दिया है कि पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, उसका कोई रेंट आता है तो आप लोग सब मिलके प्रॉपर्टी खरीद लो, उसका जो रेंट आएगा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दैट इज वन वे, एसएम रेट, है ना, जो बाकी लोग कर रहे हैं. हमारा स्टैंड उसके अंदर ये है कि आप टियर 1 में ठीक है, आप रेंटल इनकम 8 10 15% पेपर पे दिखा रहे हो, विच इज गुड, वो आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कैपिटल एग्जिट कैसे कराओगे? आपने आदमी का पैसा तो लगा दिया, 3 साल बाद मैं बोलता हूँ मुझे कैपिटल वापस करो, तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिल्डर ने जिसने आपको ये बेचा है फ्रैक्शन, उसने हाईएस्ट रेट में ही बेचा होगा, कम में तो आपको दिया नहीं है. Yes, और yes. प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन टियर 1 सिटी में क्या 10 15 20% होने वाला है क्या? आई रियली डाउट अबाउट इट, स्पेशली व्हेन इट इज अ कंप्लीटेड बिल्डिंग. तो माइक्रोमिट्टी का एसएम रेट में विजन ये है कि पैसा जो बनेगा ना, वो जो बनता है एक्चुअली, इट्स अ फैक्ट कि जमीन से जब बिल्डिंग बनना चालू होती है, जो एप्रिसिएशन होता है या कोई कॉलोनी का डेवलपमेंट जब डे 1 पे स्टार्ट होता है, तो वी वांट पीपल टू बी पार्ट ऑफ इट ऑन डे 1. नॉट कि बिल्डिंग बन की जो एप्रिसिएशन और फिर सिर्फ रेंटल आपको दे रहे हैं. हम बोल रहे हैं आप एप्रिसिएशन का भी फायदा उठाओ, रेंटल इज अ प्लस प्लस. जब टियर 2 सिटी में आओगे, जहां पे एक्चुअली ज्यादा ग्रोथ है, यहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है. तो जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले कि स्टॉक मार्केट कोविड में सब घर बैठे थे, बहुत तेजी से बढ़ गया. लेट मी टेल यू कि पिछले उस कोविड के टाइम में टियर 2 सिटीज के अंदर रियल एस्टेट 2 3 4 टाइम्स बढ़ गया. लोगों ने घर पे बैठ के वो भी ट्रेडिंग कर लिया, ठीक है, एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन. और अगेन वो तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, बट इफ इंडिया इज अगेन गोइंग टू बी 10 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो ये कंपनीज को आना तो इन टियर 2 सिटी में ही पड़ेगा, ठीक है. अफोर्डेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहीं पर है, पॉल्यूशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो इट वुड बी देयर फर्स्ट चॉइस. तो ये रियल एस्टेट और बढ़ेगा. तो अगर इंडिया बढ़ेगा, टियर 2 सिटी बढ़ेगी, तो जो वेल्थ एप्रिसिएशन होना चाहिए, जो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, वो एप्रिसिएशन में होगा. रेंटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लस प्लसिंग. तो माइक्रोमिट्टी इज गिविंग एन चॉइस कि आप एसएम रिट के पहले करो प्राइवेट इक्विटी. अब प्राइवेट इक्विटी इज अगेन एन एचएनआई वर्ड. ये प्राइवेट इक्विटी क्या होता है ना, तो आप इक्विटी तो परचेस करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, लिस्टेड कंपनी, लेकिन जब आप कोई आईपीओ आती है तब आप खरीदते हो फॉर एग्जांपल, तो बेच कौन रहा है? किसी ने पहले खरीदा हुआ है ना, तो या तो इन्वेस्टर एचएनआई उसमें बैठा है या जो मालिक है कंपनी का. हम ये बोल रहे हैं आप उस स्टेज पर आओ. तो यूजुअली कॉमन मैन को अनलिस्टेड कंपनी में प्राइवेट इक्विटी का ज्यादा नॉलेज होता नहीं है. दैट इज वेयर वी वांट देम टू कम इन, बिकॉज़ दैट इज अ सिक्योर्ड कंप्लायंट वे रेगुलेटेड बाय सेबी एंड एमसीए कि आप उसमें अपना पैसा इक्विटी फॉर्मेट में लगाओ और डे 1 पे 100 200 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में पहले दिन से ही पार्टनर बनो इन एन इक्विटी फॉर्मेट. तो अब जब वो बनेगा, बनते बनते जो वेल्थ एप्रिसिएशन होगा उस कॉलोनी का या बिल्डिंग का, वो आपको मिलेगा. दैट इज गोइंग टू बी वे मोर देन जस्ट रेंटल इनकम.
रेगुलर इनकम के Definitely. नाम पे जो भारत में लोगों को बेचा जा रहा है ना, वो उससे बेटर तरीका माइक्रोमिटी वांट टू पिच। तो टेक्निकली जो आपका क्वेश्चन है, आप हमारे पास आओगे, हम एक प्रोजेक्ट आपको एसवीपी में हमारे पास होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें हम बोलेंगे ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल वैल्यूएशन है, इसमें हम बनाने वाले हैं, इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स लाइक संजय पुरी जी इम्पेनल्ड विद अस इज डिजाइनिंग, वी आर मैनेजिंग इट, एंड इसको बनते बनते जो एप्रिसिएशन आएगा वी विल को एग्जिट। एंड गुड थिंग इन दिस होल कॉन्सेप्ट इज माइक्रोमिटी अनलाइक अदर प्लेयर्स इज ऑल्सो इन्वेस्टेड विथ यू। ठीक है, तो एसएम रेट में सेबी ने अभी ये रूल लेकर आए भी हैं वो लोग कि एसएम रेट में जो भी मैनेजमेंट कंपनीज को मैनेज कर रही है वो 25% उधर होना चाहिए। दे ब्रॉट द वर्ड Yes. स्किन इन द गेम। हाँ, ठीक है, हम ये बोल कॉर्पस रहे हैं में माइक्रोमिटी बेसिकली, कॉर्पस में बेसिकली 25% आपका होगा। आपका भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बोल रहे हैं हमारा 100% है, we are putting 100% money into this, and after getting all the legal hurdles done, जैसे कि आप कोई कच्ची जमीन लोगे, एप्रिसिएशन तो वहीं आएगा, तो उसका रेरा कराना, उसका टीएनसी कराना, उसका नक्शा पास कराना, एंड देन when the it is ready to get started, हम वहां पे बोल रहे हैं कि 40% हम डाइल्यूट करेंगे एंड फ्रैक्शनली यू कैन बिकम पार्टनर इनटू इट। सो यू विल बेसिकली गेट इक्विटी शेयर्स, आपके डिमेट अकाउंट में वैसे ही शेयर्स आएंगे जैसे किसी और कंपनी के आते हैं स्टॉक में आप जब खरीदते हो, एंड देन आफ्टर 3 years वी को एग्जिट। तो हम ओके। 60% स्टिल वी आर ऑलवेज देयर, और 3 साल या 4 साल जो भी हर प्रोजेक्ट का अपना एक टाइमलाइन है, विल कंप्लीट इट, विल सेल इट टू द एंड यूजर, एंड वी ऑल को एग्जिट। सो देयर इज अ ओ, गारंटी, देयर इज कॉन्फिडेंस बिहाइंड इट कि हमारा पैसा भी आपके साथ में लगा। तो वी आर नॉट बिल्डर कॉलोनाइजर, वी आर आल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, विच वी आर ओके। डूइंग बाइंग बेसिकली लैंड इन बल्क, बाइंग प्रीमियम रियल एस्टेट ओनली, क्योंकि रियल एस्टेट में ये भी इशू है कि मैंने पैसा लगाया है तो लिक्विडिटी का इशू है। हाँ, हम्म। आपको लॉकिंग हमारे साथ करना पड़ेगा 3 साल। रियल एस्टेट इज नॉट लाइक बाइंग सेल शेयर्स टुडे एंड सेलिंग टुमारो, है ना। वो तो शेयर मार्केट में भी आपको बोला जाता है कि बाय राइट सिट टाइट, डोंट डू ट्रेडिंग, तो या। कहने के लिए वो भी लिक्विड है, लेकिन वहां भी बोला जाता है कि यू वेट एंड वॉच। सेम चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू वेट एंड वॉच, एक टाइमलाइन है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का, और उसका एप्रिसिएशन आपको 3 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से यू कैन इन्वेस्ट विद अस। सो पीई टू रेट इज अवर की टर्म, डू पीई विद अस लाइक एचएनआई एंड एग्जिट इन द रेट, अनलाइक अदर कंपनीज जो बोल रहे हैं रेट में आप एंटर करो और उसमें फिर बने रहो। हाँ। ओके। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट क्वाइट स्मार्ट। तो आप फिर एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ मच वुड मिनिमम इन्वेस्टर कैन स्टार्ट फ्रॉम अ बेस प्राइस, बिकॉज ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में अपवर्ड प्राइस का तो कोई कैप नहीं होता। तो आप बताइए कि व्हाट इज द बेस रेट एट व्हाट समवन कैन स्टार्ट। सी मी बीइंग मनोज जोनेता, मैं तो चाहता हूँ कि 500 रुपए से भी आदमी इन्वेस्ट कर पाए, बट सेबी ने क्योंकि एसएम रेट में वो टिकट साइज 10 लाख का रखा है, सो देर इज नो कंप्लायंस इन प्राइवेट इक्विटी की कितना होना चाहिए टिकट साइज। बट प्राइवेट इक्विटी में प्रॉब्लम है कि इन एन एसपी ओनली 200 इन्वेस्टर्स कैन कम इन। तो हम लोगों ने अभी भी वो टिकट साइज टू रिमेन इन लाइंस विद व्हाट एन ऑथोरिटी लाइक सेबी इज सेइंग, हमने वो टिकट साइज 10 लाख रखा है। इवेंचुअली वी आर पिचिंग टू सेबी आल्सो कि आप रेट में ही इसका टिकट साइज कम करते जाओ, क्योंकि एक्चुअल में भारत के आम आदमी की बात होगी ना तो 10 लाख सेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। नॉट एवरीबडी हैज 10 लाख। ठीक है, दो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल से कि यहाँ पर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास दे सकता है, बट इफ यू रियली वांट टू डेमोक्रेटाइज द होल रियल एस्टेट अंडर प्रॉपटेक, जो कि पिच है पूरी इस इंडस्ट्री का कि वांट टू डू डेमोक्राइजेशन ऑफ रियल एस्टेट, एनीबडी कैन इन्वेस्ट, एनीबडी कैन बिल्ड वेल्थ ऑन इट, तो टिकट साइज होना चाहिए नीचे। बट टेक्निकली टुडे टू बी एट पार विद व्हाट ऑथोरिटीज आर सेइंग कि टिकट साइज से नीचे मत जाओ, तो 10 लाख हमने भी सेट किया हुआ है। Okay. Huh, but eventually that may come down depending on government policy basically. या वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि पहले ये 1 करोड़ होता था, फिर 25 लाख हुआ, अभी इन एसएम रेट से भी 10 लाख। तो आई एम श्योर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनोवेशन होगा, कंप्लायंसेस बेटर होते जाएंगे, ट्रस्ट बाजार में आएगा, तो सेबी विल रिड्यूस इट टू अ लोअर टिकट साइज। No, definitely I think so. I think VCs में शायद where venture capital में अभी भी शायद I think SEBI rate 1 crore है. But yeah, I think definitely if the government sees this grow at a scale, they will definitely do that for public benefit. But I really like this. I really believe in this, Manoj ji, because क्या है ना कि I have noticed कि बॉम्बे में just living in the city that I live in, इतने टावर्स आ रहे हैं, सो मेनी टावर्स आर कमिंग अप एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। घर बहुत महंगे होते हैं एंड उसमें वो एक इंसान को वो वैल्यू महसूस नहीं हो रही है कि हम जाएंगे ओके 60 माले पे भी रह लेगा आदमी, 70 माले पे भी रह लेगा, बट कभी कभी घर की खिड़कियां भी नहीं खुलती हैं। एंड व्हेन यू कम फ्रॉम द ट्रेडिशनल मिलेनियल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम 90s के किड्स हैं और वट एवर, नाउ दैट वी हैव बिकम द अडल्ट जनरेशन,
We are used to, having our societies wahan, मैदान we used to go and play. So we have that thoda traditional concept. So somewhere we have started noticing, since I think 20, since COVID, there has been a slight migration beginning of people who look for good education systems, basically, so that they can move their families into tier 2 cities. So a lot of people have also been moving to Goa, which is actually, देखा जाए तो लोग का एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है, बट दे हैव अ वेरी नाइस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लाइफ. थोड़ी लाइफ स्लोअर होती है, बिकॉज बॉम्बे में स्ट्रेस बहुत होता है, स्पीड बहुत होती है, कंपटीशन बहुत है. सो people are not enjoying that lifestyle, so there are people, I think, who are going to, people who have, I have seen come from, a girl I knew came from Uttarakhand, and she was working in a very big she was working for one of the big four, and she did not like staying. She used to live next door. उसको यहाँ पसंद नहीं था. She said, I came here, and I thought life is going to be a certain way, but मेरा घर पहाड़ पे है, मेरे घर के बाहर, an apple tree grows outside my house, and खुला आसमान देखने की आदत है. So I can't shift with this life, and she moved. She went back. So I definitely see this, and I see that we are building all these houses, but eventually we are not understanding that people are going to go back to second tier cities and go back to their homes because the life over there is better. Opportunity may be there in Bombay, but your general health and all of those things. So I do think in the next maybe 5 years you will start seeing that entire increase, and by the next 10 years this will be a very full swing. Motion where everybody is now going to those cities, because definitely standard of living is better, opportunities are going to grow because people are going there, remote working is becoming a trend. So definitely I see this. um, Let me ask you my next question though. You're seeing now technology, and you've been in AI. So now you're seeing technology is actually entering a lot of human processes. What people used to do before, today AI is coming in and helping people do that. So how do you see that helping the entire, like, infrastructure in India? And how do you think micrometry is going to fit into that vision? So see, Micrometry technologically has plans to bring a lot of good things using AI and technically. I'll give you some very simple examples. One of the best case use of AI and technology in real estate is going to be decision making, where you gonna buy. So when I'm saying decision making of buying land. तो पहले आप फोन लगा के अपने आसपास के दोस्तों से, ब्रोकर से पूछा करते थे कहाँ लगाना है. बट वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि विच लैंड पार्सल या वेयर द कम्युनिटी विल ग्रो, है ना, कहाँ पर डेमोग्राफिक्स बेटर है, कहाँ पे एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन होगा. सो बाइंग डिसीजन विल बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी with the help of AI. Number two, there is a straightforward implementation of AI in community building on rentals. So rental में tenant verification एक topic हो गया कि आपके पास में रहता कौन है, क्योंकि सेफ्टी इज गोइंग टू बी ह्यूज थिंग जैसे जैसे कंट्री बढ़ Yeah. रही है. सो हु इज रेंटिंग अराउंड, व्हाट इज हिज प्रीवियस क्रेडेंशियल्स, दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन अ कम्युनिटी. आप किसी को रेंट पे घर दे रहे हो या किसी कमर्शियल में भी आप किसी को दे रहे हो, व्हाट दे आर डूइंग, है ना. यू माइट हैव ऑलरेडी सीन सम प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कैमरास. ये तो अभी टियर 1 सिटी में अप्लाई भी हो गया है कि कैमरा से यू आर identifying who is the people roaming around in your community. So safety and security is going to be a huge thing technologically. Third, when you are trying to create wealth via real estate, the first fear was fear of you or anybody is कि ये land के पास रिकॉर्ड्स क्या है ना. 1925 तक के पेपर देखने पड़ते हैं. तो नॉट एवरीबडी इज वेरी वेल इक्विप्ड कि वो पूरा रिसर्च कर लिया. सर्च रिपोर्ट लगता है लैंड का एक, है ना. ये Mhm. टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है आज की तारीख में कि लैंड रिकॉर्ड जो हम ब्लॉकचेन भी बोलते हैं अभी की, ब्लॉकचेन के थ्रू लैंड रजिस्ट्री को हम मैनेज कर रहे हैं. तो नॉट जस्ट लैंड रजिस्ट्री और लैंड ओनर्स को हम मैनेज कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो क्रॉस वेरीफाइंग कि हु वाज द प्रीवियस ओनर. सो एक सिंगल क्लिक पे वी शुड बी एबल टू नो कि ये लैंड क्लीन है या नहीं है ना. ये चरनोई की जमीन है, एग्रीकल्चर की जमीन है, ये रेसिडेंशियल. लोगों को लैंड यूज भी नहीं पता एक्चुअली, उन्हें पता ही नहीं वो क्या खरीद रहा हूँ. लोग कई लोग आई नो एंटरप्रेन्योर्स वो घर की रेसिडेंशियल लैंड यूज जमीन खरीद लेते हैं अपना ऑफिस बनाने के लिए, बाद में निगम वाले तोड़ने आ जाते हैं कि ये तो कमर्शियल बंडलिंग बना लिया आपने. तो दोस काइंड ऑफ सिंपल डिसीजंस आल्सो कैन बी इजीली ड्रिवन बाय टेक. प्लस जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टेक का फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल है कि अब जैसे जीरोधा
अब Zerodha has made it so easy for investors to put money into stock market and even helping them to do a decision making, grow, and all those kind of apps are already there. So that Micromet is bringing that kind of app. When you're not buying real estate, आप एक click पर real estate buy कर सकते हो in fraction में. Transparently, you can see what are the papers available there. Is it clean or not? You can also see who are all the other investors. What are their profiles? Do you really want to become one of the investors with those people? And all those kind of technically things are now possible. So one click you can be sitting anywhere. और आप जो भी पहले बात कर रहे थे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आई वांट टू add on to it. If you're in Mumbai, you are not just investing, of course you will कि मुझे अगर कभी tier 2 city में जाके बसना है तो I should be putting money in tier 2 city. But if you still want to live in Mumbai and you want to grow your wealth, क्योंकि tier 2 city में wealth बहुत तेजी से grow हो रहा है तो real estate के थ्रू, तो you should be investing even if you don't want to move out of Mumbai. You should be investing in tier 2 and tier 3 cities क्योंकि वहां जो appreciation जिस speed से आएगा उतना मुंबई में नहीं आएगा. So say if you want to stay in Mumbai and want to buy a flat, आप मुंबई के रियल एस्टेट में कितना ही पैसा लगा लो, आपका उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा कि आप यू आर एबल टू अफोर्ड अ लैंड और फ्लैट आफ्टर सम टाइम. बट प्रोबेबली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ टियर 2 सिटी बाय लिविंग इन मुंबई, वहां जो ग्रोथ आ रहा है दैट ग्रोथ आप यू कैन सेल आउट एंड देन यू कैन एक्चुअली अफोर्ड अ फ्लैट इन मुंबई. सो दोनों कॉन्सेप्ट यू शुड बी लुकिंग एट. तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली will play a huge role in legal tenant verification, even creating jobs, and also making sure that your transactions are seamless and as well as buy sell. This is actually very helpful, because it's actually solving a huge problem in real estate buying right now. I think probably you all realize that when you all were doing it only, but lots of people get stuck, because land buying एक process होता है जो no matter how much you prepare for it also, until and unless if somebody you really know around you has that experience and is in the business, they can help you. Otherwise, generally, if even if you study on ground, buying में जो issues आते हैं cannot be predicted also. There are a lot of issues, not just trust but also policies, also where you're buying, what you're buying, what the infrastructure around it is, what the issues, communities, all of that is a very big hassle. So yeah, this sounds very interesting. And also, I one of the things that I have noticed is that abhi bhi there are safer areas around Mumbai also, but I do know that when people buy land now, they say that they put a fence around it and they are like, nahi nahi, fence to laga lo, but very quickly build a boundary wall. नहीं तो वो उन लोग वो they come and remove the fence also and they take it. So you don't, and then once you start fighting for those properties, and as you know how difficult it is in India, if somebody is living somewhere for even like 8 or 9 years, even if they don't own the property, it's difficult to evacuate them from that property. So yeah, See, I'll tell definitely you this one more is. example. Now that you brought to this, मेरा जो पहला मास्टर्स था ना यूएस में, दैट वाज इन ज्योग्राफी. और हम लोग लैंडसेट सैटेलाइट डेटा आता था, उससे हम यूएस में यही देखा करते थे कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कब्जा कर लेगा कोई जमीन पर, आपको फिजिकली जाके देखना पड़ता है. वाया टेक्नोलॉजी यू कैन गेट अलर्टेड वेरी क्लियरली कि आपका जो लैंड पार्सल है, उस लैंड पार्सल पे अगर एक ईंट भी किसी ने लगाया है, यू कैन इजीली फिगर इट आउट एंड यू कैन गेट अलर्ट. सो इट्स नॉट लाइक कि टेक्नोलॉजी नहीं था तो फिर आप अपने घर से दूसरा घर का प्लॉट खरीद लो या दूसरे कहीं खरीद लिया आपने, तो आपको चेक करने जाना पड़ेगा. विद टेक्नोलॉजी यू डोंट एक्चुअली गो एनीवेयर. Yeah, That is also one of the basic implementation of technology or AI into the whole real estate business कि आपका encroachment नहीं होगा, है ना. You can get alerted by geo fencing, जिसको हम अभी बड़े simplified terms में बोलते हैं, that can be done. that's very interesting. So there is a new thing come up like geofencing. Yeah. Geofencing के बहुत सारे applications है. One of which is very simple कि ये मेरा land parcel है, इसमें अगर किसी ने entry भी कराया तो मुझे पता चल जाएगा. It is that easy. So A that's construction very work obviously interesting. you can figure it out. That's actually very interesting. I actually did not have any idea about this, and considering that I think of myself as relatively well informed, this is something very new. तो There are आप companies named their companies are easy. Easy, ESRI, there is a company named Rolta. They all do it. और इंडियन गवर्नमेंट और नगर निगम बहुत सारी ये यूज भी करती हैं सिटी प्लानिंग में. तो यू नॉट एक्चुअली, अभी जो आपने देखा होगा टियर 2 टियर 3 में जो प्रॉब्लम है, सड़क खोद खोद के पाइपलाइन डालते हैं
क्योंकि उन्हें नहीं पता पहले कहाँ डला हुआ है, बट वाया सैटेलाइट डेटा इन दिस कंपनीज यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि लैंड के अंदर पाइपलाइन कहाँ डला है। तो अर्बन प्लानिंग में ये यूज होता है टेक्नोलॉजी पूरा, कहाँ पे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करना है, कहाँ खोदना है, कहाँ नहीं खोदना है ना, पानी कहाँ से जा रहा है। सो दिस आर ऑल वेरी एडवांस थिंग्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग, बट with the use and affordability of this software, क्योंकि महंगे होते थे पहले सैटेलाइट डेटा लाना, इट वाज नॉट इजी, बट नाउ इट इज इजियर। तो ये माइक्रोमिट्टी के थ्रू या एनीबॉडी कैन एक्चुअली डू इट, कि जियो फेंसिंग ले आए, छोटे छोटे एप्लीकेशन से बन सकते हैं। प्रॉपर्टी में ही बनते दिखेंगे आपको, कि जहाँ पे लोगों के लिए प्रैक्टिकल यूसेज प्रॉपर्टी में या लैंड बाइंग सेलिंग में या उसके प्रोटेक्शन में इंक्रोचमेंट रोकने के लिए यूज होगा इन सबका। Well, that's actually very very interesting to know, because abhi bhi there is a lot of encroachment problem, and encroachment का तो problem है ही, उसमें eviction का जो पूरा process हो जाता है ना, उसमें लोगों के generations ही निकल जाते हैं। मतलब हम तो लड़ेंगे ही, हमारे बच्चे भी लड़ते चले जाएंगे। So absolutely, if it can be cut off from the root cause itself only, तो क्या बात है, you know, that's where it should go. So, tell me then, Manoj ji, ki where do you think real estate investments will work on the future of wealth creation in India? Or what do you think कि जो traditional um, लोग afford नहीं कर सकते थे, उन पे क्या effect होगा ये category का? Again, so same thing, keep using PropTech, using fractional real estate investment model. If you are able to take right decisions and if you are able to take early decisions, wealth creation होगा। आप अपना पैसा डाइवर्स, फाइनेंस का बेसिक, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बेसिक प्रिंसिपल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप, इट इज वेरी टफ नाउ डेज टू एक्सप्लेन पीपल कि भाई सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं लगाने का नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ स्टॉक मार्केट में भी लगाने का नहीं बोल रहे हैं, टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, है ना। एंड बिकॉज वेल्थ क्रिएशन, अगेन लाइक आई सेड, अगर इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, जो कि बनेगा, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, टीयर 2 सिटी में पैसा बनेगा, यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू रियल एस्टेट, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग रियल एस्टेट, अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप रेंटल इनकम के लिए पैसा लगाओ। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट रेंटल इनकम, रेंटल इनकम इज अ रेगुलर इनकम, वेल्थ क्रिएशन हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। वो एक Yes. मैजिक होता है, इन अ पॉजिटिव वे में उसे बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में एक मैजिक होता है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपको बहुत बढ़ता ना दिखे, लेकिन तीसरे साल अचानक से डबल हो जाता है, टीयर 2 जी। से में 3 गुना 4 गुना हो रहा है। सो आई डोंट वांट टू यूज दिस लाइन फॉर इंसेंटिवाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, बट ऐसा होता है। तो अगर आप, ठीक है, 2-3 गुना का भी डिस्कशन हम नहीं करते हैं, लेकिन 5-10 साल में इफ यू आर गोना पुट मनी इनटू रियल एस्टेट, आई बिलीव इट विल जनरेट बेटर रिटर्न्स देन एनीवेयर एल्स। At least you should have some part of it from a wealth creating perspective। और ये पास्ट डेटा से आप कंपेयर कर लो कि एक्चुअल में मिलेनियर्स बिलियनियर्स बने कहाँ हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी इज, उसको डिजिटल मीडिया का बहुत सपोर्ट है, टीयर 1 सिटी में बहुत ज्यादा चलता है, तो वो तो रिकॉर्डेड है। लेकिन जो रियल एस्टेट में लोगों का पैसा बना है, जो मिलियनर्स बने, वो मे बी रिकॉर्डेड नहीं है फॉर वेरियस रीजन, क्योंकि लैंड ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ ए एंड बी कैश कंपोनेंट में ज्यादा होता है। बट इफ यू डू लिटिल बिट स्टडी अराउंड योर एरिया नेबरहुड के एक्चुअली पैसा किसने सबसे ज्यादा बनाया, तो आपको दिखेगा रियल एस्टेट वालों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, जिनके पास जमीन थी, जिन्होंने नोइंगली अननोइंगली, या मेरे फोर फादर्स हो या आपके कुछ पड़ोसी हैं, यू विल फिगर आउट। किसानों ने तो बनाया ही, क्योंकि वो इंफ्रा जो ग्रोथ हुआ तो किसानों की जमीन के भाव बढ़ गए। बट अभी ये रुका नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ह्यूज इज गोइंग टू हैपन, ह्यूज। आप गवर्नमेंट के बजट्स देख लीजिए, गवर्नमेंट का बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का कैटेगरी देख लीजिए, कितना पैसा वो लगाने वाले हैं। तो जब लगेगा तो कुछ बनेगा, कुछ बसेगा, ठीक है। तो बिजनेसेस भी बनेंगे, बसेंगे, लोग भी आएंगे, रहेंगे, अफोर्डेबिलिटी जहां है वहां ज्यादा लोग आके रहने वाले, तो वो वेल्थ क्रिएशन ओवर द पीरियड टाइम बहुत ज्यादा होगा। आई एम वेरी बुलिश इनटू इट। all I want to say is कि again don't put all your eggs in one basket, especially my pitch is to the younger generation। पुराने लोग तो फिर भी समझते हैं, उनको स्टॉक में anyway वो कम है, यंगर ज्यादा है। जो मैंने आपको डेटा फैक्ट दिया है, ये अंडर बिलो 30 ईयर एज ज्यादा लोग स्टॉक्स में, क्योंकि टिकट साइज उनका छोटा है तो वो वहीं चले जाते हैं, उनके लिए इजी हो गया जरूरत से पैसा डालना। बट दे आर मिसिंग ऑन दिस होल bandwagon of growing wealth into real estate, so they should think about it, and this is a good way to invest via fractional। बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनर कैसे बनोगे, दैट इज व्हाट पीपल शुड थिंक। रेगुलर इनकम तो आप कमा लोगे, आप यंगस्टर्स हो, आप जॉब करके अपना पैसा बना ही लोगे, बट अगले 5-10-15-20 साल में व्हेन यू लुक बैक कि मैंने रेगुलर इनकम से सैलरी तो बनाया, लेकिन मेरा वेल्थ क्रिएट एक्चुअली हुआ क्या,
और वेल्थ इज नॉट जस्ट कि मेरे पास कितना पैसा है, the whole asset class, the ability to roam around freely, not doing more jobs, no more job working, but something rental income, asset से ही होने वाला है. You need assets to make that happen, and that can be built over the period of time using this fractional real estate investment methodology. No, I completely agree with you on this, Manojji, because I have a slightly traditional mindset. I mean, yes, all of my eggs are in one basket in the stock market. तो जिस दिन वो नीचे गई हम भी चले. But I completely agree with you when you talk about real estate being a very good category to invest in. Is also because it's tangible, no? Because all this time we are willing to, you know, willing to trust the value of a company or the growth of a company, even when we know that the prices are inflated or we are inside an inflation. So why don't we then want to trust, somewhere जहाँ पे अभी growth start हो रही है. I wouldn't even say हो गई है, हो रही है. And you definitely know कि अगर big cities इतना भर गई हैं लोगों से कि that they're just spilling out. So eventually when people can afford to live and work from wherever they want, they would like to work from bigger areas, bigger spaces, cleaner cities, better amenities, stress free lifestyle. So definitely I think real estate is a very tangible, you can see it, you can literally touch it, and it never depreciates. उसकी जो बेस वैल्यू है उसकी बेस वैल्यू ही रहेगी, कभी जीरो पे तो नहीं जाएगी. सो इट आई थिंक समवेयर इट इज लिटिल बिट लाइक द इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड. उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे तो नीचे वो जाएगी नहीं, जीरो तो नहीं हो सकती. स्टॉक मार्केट तो फिर भी जीरो हो सकती है. सो I definitely believe in what you're talking about. So tell me then, आपने 15 years गुजारे हैं in this industry, and आपको एक टेक का एक्सपीरियंस है, एआई का एक एक्सपीरियंस है. आपको क्या लगता है कि आपने क्या देखा है in these 15 years that actually excites you about this entire industry? See, like I said कि पिछले 15 साल में इंडिया में, नॉट जस्ट 15 साल, पिछले 20 साल में एक्चुअली इंडिया में आईटी ने कमाल किया. आईटी के कारण ऑल द जॉब्स वर क्रिएटेड. इवन मैं बना हूं क्योंकि आईटी था, क्योंकि कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता. आईटी में कोई भी स्टार्ट कर सकता है विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो वो एक दौर था. ठीक है, इंडिया हैज ग्रोन एनीथिंग लाइक इट. बट नाउ कंट्रीज लाइक वियतनाम, फिलीपींस, यहाँ पे है ना, देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज कंपटीशन इन आईटी. मुझे लगता है आईटी में तो स्लो डाउन इनविंसिबल है इंडिया के अंदर. एंड यू हैव सीन हाउ जॉब्स आर बीइंग कट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स. क्योंकि अब वो जो लेबर आर्बिट्राज वाला होता था ना, वो होने नहीं वाला है. कि पहले इंडिया में लेबर सस्ता होता था, यूएस में महंगा होता था, तो यहाँ आ जाएगा. You will get a very good competition of Vietnamese and Philippines guys. They are working 6 days a week, beating India on that front. And then India doesn't have a lot of product companies. There are very few product companies. Like Zoho is doing super, but the next era in IT will be of product companies. So फिर job बनेंगे कहाँ? That's something everybody has to think about. कि jobs कहाँ है? Where will jobs will grow? So I think real estate. When I say, I mean, I again keep reiterating this for the viewers कि real estate सिर्फ जमीन खरीदना बेचना नहीं है. ये पहले होता था. अब वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर. तो मुझे ऐसा लगता है दो चीजें होने वाली इंडिया में. with the growth of infrastructure, with the growth of manufacturing, defense sector, even agriculture में use of technology has attracted lot of young talents. and the whole warehousing thing e-commerce के कारण जो IT से ही आ रहा है, क्विक कॉमर्स बढ़ते जा रहा है. आपका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ इनोवेशन होने वाला है. ठीक है, हाउ इज गोइंग, तो एवरीथिंग विल हैपन ऑन रियल एस्टेट एंड देयर विल बी वैल्यू एडिशन. तो बहुत सारे जॉब्स भी जनरेट होंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने आएंगे. इवन एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को अभी समझ में आने लगा है कि स्टॉक मार्केट इक्विटी वैल्यूएशन इज सुपर हाई. तो इफ यू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ गूगल रिसर्च, आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल वेल्थ, ये जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, इनके मैनेजर्स रिजाइन करके ना एआईएफ कैटेगरी 2 रियल एस्टेट फंड बना रहे हैं. So they are bringing that money also into real estate. क्योंकि after a certain period of time, HNI, ultra HNI, they don't invest money for regular income. They invest money जहाँ wealth बनेगा, wealth create होता है लॉन्ग पीरियड. तो वो पैसा भी आएगा. तो यहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और कॉमन मैन को समझना चाहिए there's a huge opportunity. सिर्फ खरीदने बेचने का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. मैंने अपने रियल एस्टेट अगेन एंड अगेन, दिस कम्स फ्रॉम माय लास्ट 15-20 years की. फिर पैसा किधर जाएगा? अगर आईटी में स्लो डाउन आएगा तो इन्वेस्टर्स पैसा किधर डालेंगे?
है ना, मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे, कोर हार्ड एसेट में डालेंगे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, डिफेंस सेक्टर में डालेंगे, ये सब जमीन पे होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में डालेंगे, लॉजिस्टिक में डालेंगे, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एआई में भी डालेंगे तो एआई में बहुत चीज होने वाली है। कैमरास अगर लग रहे हैं तो बड़ा बेसिक इंप्लीमेंटेशन एआई का, कैमरास बेसिकली लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है, क्रिमिनल टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर यूज होने वाला है। लेकिन ये सारा पैसा रियल एस्टेट में वैल्यूएशन के थ्रू आएगा। देयर विल लॉट ऑफ बिगर फंड्स फ्रॉम इवन आउटसाइड एफडीआई फंड्स जो इसमें पैसा डालेंगे। ब्लैक स्टोन, ब्लैक रॉक यही करते हैं ना, दे आर ब्रिंगिंग सिंगापुर पेंशन फंड मनी। तो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर। तो मुझे लगता है मेरा पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस यही रहा है कि आई स्टडीड हाउ things have changed, how they will change, and how it will happen in future. So that is what I'm trying to bring onto table for everybody कि please study this, do not miss the bandwagon। कि एक वेल्थ क्रिएशन इंडिया का तो हो गया, फिर आप हमेशा वो जो बोलते हो कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, दैट इज एन इशू। अमीर अमीर इसलिए हो रहा है क्योंकि ही इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर, he is a visionary, he is financially literate also, and he is understanding the future concepts। हम आज जो हो रहा है उसमें अटके रहते हैं, आज पैसा क्या बन रहा है, कल कैसे बन जाएगा, मेरा F&O कैसे बढ़ जाएगा, या मेरा शेयर कल कैसे 3 गुना हो जाएगा। रियल एस्टेट तो बोरिंग है, बोरिंग इन्वेस्टमेंट ही है ये। इट इज नॉट वेरी लाइक शाइनी कि मेरा आज ज्यादा कल बढ़ जाएगा। तो यू टू थिंक दैट वे कि फ्यूचर क्या है, थिंक लाइक HNIs, थिंक लाइक अल्ट्रा HNIs, रीड अबाउट विच आर द ग्रोइंग सेक्टर्स, रीएनालाइज, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि ये होगा तो जमीन पर ही, तो फिर मेरे आजू बाजू पैसा बनेगा, तो हाउ कैन आई बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रोइंग वेल्थ जर्नी, है ना। एंड बी टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टर्म विजन। ये तो आपको स्टॉक्स में भी सिखाया जाता है, आपको सारे आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही सिखाते हैं कि भाई होल्ड, बाय एंड होल्ड, तो बाय गुड इन रियल एस्टेट and hold on to it, so you will get benefit of all this kind of future advancement in technology, coming funds coming into your way, and the money flowing around the whole real estate sector. This is very interesting, Manoji. I really like the entire model of your company. Your business model is very nice, very interesting. I definitely agree with what you're saying. Definitely, ke, uh, there was a time when we felt कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग हब। बट व्हाट थ्रू माय एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड टू थिंग्स। वन बीइंग दैट इंडिया में एंटरप्रेन्योरल जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। वी कैन see that a gap in the market, we can pick it up, and we are amazing at being entrepreneurs. And the second thing is that the entire, of course, corporates bade ho chuke hain and they're big companies, so now they have to focus on certain goals, like maybe they have to focus on revenues or all of those things. Ek bar un log ka IPO ho jata hai, then they have to think about, you know, a lot of other things, like there are many investors, company has to grow. But when the younger people have come into the market, what I have realized, the main thing that they offer, us and this entire industry, is value. We want to give value to our people. That is how people will come to us. We want to provide, you know, for X service amount, we want to provide like X to the power of 5 value. Is something that is very wonderful coming into India, at that entire entrepreneurial mindset is so nice. And I think also that Micromitti is going to be one of those companies. So आप मुझे then बताइए कि what's next for Micromitti, and what exciting developments and features can we expect to see soon? See, number one thing, I'm very excited to be a part of an ecosystem which is going to bring a huge revolution into the whole industry. Be it a technical side of it, or be it a side where we are actually motivating youngsters to do it। अभी आपने एक लाइन धीरे से बोल दिया कि इंडिया इज नॉट अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग हब, बट लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल कि वेयर आई गेट एक्साइटेड टू ब्रिंग माइक्रोमेट्री इनटू द पिक्चर। एक स्टडी थी अभी कि चाइना +1 पॉलिसी के कारण जो भी ग्रोथ हुआ, इंडिया was only able to get benefit 2.37%, बाकी का फायदा वियतनाम, फिलीपींस जैसी कंट्री ले गई। तो वी कैन से दैट कि हमको उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आई कैन टेल यू 2.37% का फायदा तो हुआ है। एंड व्हेन वी सी मैन्युफैक्चरिंग, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग था वो ठीक था, इंडस्ट्री लगाना, बड़े बड़े वसा लगाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट इन फ्यूचर। अभी जो यंगस्टर्स कर रहे हैं ना ई कॉमर्स में, दे आर एक्चुअली डूइंग लॉट ऑफ गुड, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो यूपी में तांबे से ना बना के आर्टिकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर में आप यू विल सी लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एजुकेटेड, नाउ दे आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो when we are saying manufacturing is not going to be traditional सी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगा लिया, even defense sector अगर वो भी हम बात करें तो it is growing, it will grow if we remain optimistic. काफी चीजें जमीन पर होंगी, और Micrometti we keep pushing entrepreneurs like this to do much better. I know one entrepreneur here in Indore in tier 2 city, एक लड़की है, and she does $1 million of export from a small place to US. चादर बनाते हैं वो लोग, छोटे छोटे व्हाइट चादर, लिनन चादर, क्वालिटी सुपर. सो जो गिग इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, कि छोटे छोटे लोग Hmm. मिलके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, वो होगा, है ना. एंड यंगस्टर्स विल बी पार्ट ऑफ इट. हम उसको वैसे नहीं देख सकते कि पहले लोग इंडस्ट्री वो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े हब बनाते थे तो वैसे बनाएंगे, वो तो बन ही रहे. बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, चाइना 1+ पॉलिसी धीरे धीरे आएगा, एंड आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इनटू इट. बट यंगस्टर्स विल कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग मोर एंड मोर एंड मोर. जैसे एक टेक्नोलॉजी आईटी में 20 साल में क्रांति आया है ना, कि इन्फोसिस सीसीस का, यू सॉ लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग सर्विस सेक्टर. वैसे ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज और इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो कि वाया ई कॉमर्स, क्यूआईपी मॉडल, अभी जेप्टो, ये सब भी क्यूआईपी मॉडल है, लेकिन दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. पर जिस तरह से उन्होंने कंजम्पशन ऑफ गुड्स को बढ़ा दिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं तो होगा. पहले आप सिर्फ अंकल चिप्स खरीदते थे या लेस Hmm. खरीदते थे, अभी आप देखोगे Hmm. ई कॉमर्स पे 100 नए ब्रांड दिखेंगे आपको जो Hmm. चिप्स ही बेच रहा है. वेरी सिंपल एग्जांपल. तो वो हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है ना, कोई Yeah, तो बना correct. रहा है ना. तो इट्स नॉट हैपनिंग लाइक लेस ने कोई 4 नई फैक्ट्री डाल दिया. बट आप देखोगे कि वो 100 जो नए चिप्स के ब्रांड्स वहां पर आए ना, वो खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बट कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. तो ऑन द ग्राउंड लेवल एक्चुअली टीयर 2 टीयर सिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ये सब के कारण भी इंडिया में ग्रोथ होगा इन अ डिफरेंट वे. Yeah. So we No, are I very completely very agree. excited to be part of it. Yeah, no, that you're absolutely correct about that. Where I meant manufacturing was कि international companies आएंगी और हम उनके लिए products बनाएंगे, not that way. But yes, definitely, I think Lijjat Papad is one of the best examples of that, where it started and where it's going. And today, I think uh, they employ 40,000 women, and they're empowering 40,000 women across villages in India. So yes, definitely. देर आर हम जो खुद आर्टिसनली खुद बनाते हैं and what our products are, definitely those are brilliant, and you are absolutely correct about that, no denying it. And yes, it was actually a great pleasure speaking to you, getting your insights. You have a lot of experience to give, and wo dikhta hai. And thank you so much for joining us, Manoj ji. And we hopefully, maybe when I will invest in Micromitti soon, I would like to at least have enough to, because 10 lakhs is a big amount for me, at least right now, but I'm close to it. So I would love to do that. Thank you so much for joining us. And as for our viewers, until next time, thank you. Thank you, Alavia, and thank you, PropTech Buzz. Companies like you are really promote the whole PropTech and change the scope of real estate being just buy and sell, but be more on a technological side. और आप लोगों का role is going to be more and more and more important, क्योंकि ये चीजें बाहर निकल कर आएंगी तभी. यूथ आज जॉब्स के लिए जब रियल एस्टेट बोलते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि मुझे रियल एस्टेट में नहीं जाना है. बट podcasts like this, companies like this, and you connecting, creating the whole ecosystem is going to be the next milestone, and will help a lot of youngsters to get jobs and get better jobs than what they are currently doing. And it's at the end of the good for the whole India and the economy. So thank you for doing what you're doing, and my best wishes. Please keep doing it. Thank you so much, Manoj ji. Thank you.